हाँ जी, रेकी जिहड़ा इलाज है वो रेकी बारे समझ आ गई भी रेकी क्या चीज़ है, कितनी कीमती है, और उस कीमती चीज़ को आप एक तो दूसरे ਨੂੰ दे के शरीर के अंदर जो भी रोग है उन्हें ठीक कर सकते। हुण इनू सीखण तो पहला रेकी का जिहड़ा कोर्स करन तो पहले सानू रेकी योग साधना जिहड़ी है वो करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि उसनू कीते बिना जिन्नी देर तक साडे शरीर के अंदर के सारे सिस्टम स्वस्थ ना हो, ताजे ना हो, और साडे सारे चक्कर एक्टिवेट ना हो, सारे चक्रां दे विच भरपूर ऊर्जा का आना और जाना ना हो, तो उन्नी देर तक तो गल नहीं बन सकती, क्योंकि ऊर्जा ने आना है फिर जाना है। और आन जान वाला जिहड़ा साधन जिन्हों आप चक्कर कह रहे हैं, ये चक्कर भी बिल्कुल परफेक्ट और स्वस्थ होने चाहिए। तो सब तो पहला आपने रेकी योग साधना करनी है। ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ तक, और जे ਇਹਦਾ और ज़्यादा फ़ायदा लेना है फिर ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ सवेरे 3 ਤੋਂ ਲੈ के 5 बजे तक, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, रेकी योग साधना, ये करनी हर एक वास्ते कंपलसरी है। जिहड़ा बंदा भी रेकी सीखता है, जिहड़ा बच्चा रेकी स्टूडेंट है, उन्होंने सवेरे रेकी योग साधना करनी चाहिए है। करनी जरूरी है, चाहिए नहीं करनी, पहले करनी पैंदी है, उस तो बाद रेकी की अटूनमेंट होती है, दीक्षा होती है। तो रेकी योग साधना के विच क्या है, ये अलग अलग स्टैप ने। सब तो पहला स्टैप है अवेयरनैस चार्ट। सैकेंड ਇਹਦਾ स्टैप है 5-7-5 एक्सरसाइज। उस तो बाद नैक्सट स्टैप है ਇਹਦਾ प्रेयर। उस तो बाद नैक्सट ਇਹਦਾ स्टैप है प्योरीफिकेशन ऑफ चक्रा। उस तो बाद थोड़ी ये करन तो बाद 4 स्टैप ये कंपलसरी ने खड़े होके, ये स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग मीन खड़े होके ये स्टैप करने कंपलसरी है। उस तो बाद जिहड़ा है कुछ सूक्ष्म व्यायाम, उस तो बाद इहदा जिहड़ा है नैक्सट अगे स्टैप दे विच आपाने मंत्रोच्चारण, मंत्रा चैंटिंग कह रहे हैं, ठीक है ना। उस तो बाद मुद्रा चिकित्सा, ठीक है ना। और उस तो बाद चैंटिंग, ठीक है ना। मंत्र जिहड़े ने इहदे विच यम, रम, वम, लम, हम, ओम आदि ये मंत्र सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। और ओम जिहड़ा है वो मेन मंत्र चैटिंग है। उस तो बाद फिर लास्ट के जो समाप्ति होती है, उस तो बाद फिर एक बारी प्रेयर आएगी, ठीक है ना भाई। और ये नाल फिर सप्ताह दे विच, हफ्ते दे विच एक बारी योग निद्रा। ये जिहड़ा प्रोसैस है ये रेकी सीखण तो पहले पूरा करना जरूरी है। ਇਹਦੀ पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ਇਹਦਾ पूरा बंदा एन पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਅਟਿਊਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੇਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਰੇਕੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਟਿਊਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਲਈ ਔਰ ਆਓ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਟਿਊਨਮੈਂਟ ਹੋ। ਇਹ ਅਟਿਊਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਮੀਨ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਆਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢੋਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੀਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਕੀ ਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ, ਹੀਲਰ, प्रैक्टिशनर बढ़ सकते हो। नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तो खाना पूर्ति। तो रेकी कोई खेल नहीं है, रेकी एक बहुत बड़ा इलाज है। इनू सीखण तो पहले सानू की करनी है, रेकी योग साधना का जो कोर्स है, ये जो सारा प्रोसैस है ये करना जरूरी है। ये बेसिक कोर्स है। इस ये बेसिक कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ पूरा ट्रेंड हो जाता है, फिर अगे उसकी दीक्षा। ठीक है ना, बात समझ आई कि नहीं? तो ये साधना जो है रोज़ सुबह उठ के आपको करनी है। ठीक है, इसके स्टेप और साधना के टोटल जो पूरे स्टेप है वो है 200 स्टेप। टू 200 स्टैप्स ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਨਫਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं सही समय पर सोया, सही समय पर उठा, सही समय पर जागया, सही समय पर काम किया, मैंने अपनी लाइफ में सही चला रहा। अगर तुहानू कोई किसी भी 24 घंटे के प्रोसैस के कोई भी गड़बड़ होएगी तो तुहानू सवेरे साधना के पता लगेगा कि मैंने इस हिस्से तो ज़्यादा कम लिया या इस हिस्से तो कम नहीं लिया। तुहानू जिहड़ा है अपने आप बॉडी के ऑर्गेन्स दसणगे कि मेरे तो कम ज़्यादा लिया, मेरे तो कम नहीं लिया। तो वो तुहाडी जिहड़ी अनबैलेंसिंग है उहनूं साधना दे नाल फिर बैलेंसिंग होएगी। फिर जाके दिन भर तुहाडे तन दे विच एक नवीं ताजगी
एक नवी फ्रैशनैस जो है वो रोज़ तुहानूं फीलिंग होएगी। और फिर लाइफ जिहड़ी है ये तन जिहड़ा है शरीर जिहड़ा बॉडी जिहड़ी है ये वधिया होएगी। और बॉडी के वधिया होने के नाल नाल ही तुहाडा जिहड़ा ऑरा बॉडी है ये भी फिर बहुत वधिया होएगा। जिहदा ऑरा स्ट्रोंग हुंदा है उही बच्चा दीक्षा लैण दे परफेक्टली काबल होता है। और फॉरन दे विच जदों रेकी सिखाई जाती है, रेकी सिखाण तो पहले एक प्रोसैस विच दी गुजरना पैंदा है। जिवें एक डॉक्टर हुंदा है कि नहीं, डॉक्टर की करता है मरीज़ नूं पहले उहदा डायगनोज करता है, उहदे टेस्ट करता है, देखता है भी इहदी बीमारी कित्थे है। उस तो बाद उहनूं दवाइयां मैडिसिन चालू करता है। चालू करन तो बाद दोबारा फिर उहदा डायगनोज टेस्ट हुंदे ने कि हुण इहदे सारे टेस्ट डायगनोज सही है या नहीं। इसे तरह ही जिवें जापान की ये रेकी खोज है, जापान की ये टैक्नीक है तो साडे भारत वर्ष की, पर इहदी खोज जापान दे विच हुई है। डॉक्टर मिकायो सुई ने इहदी खोज की, ठीक है ना। तो उत्थे की है कि सब तो पहले बॉडी का ऑरा चैक किया जाता है स्टूडेंट का, उस तो बाद उन्होंने साधना करवाई जाती है, उस तो बाद फिर वह ऑरा चैक किया जाता है। ऑरा चैक करने तो बाद फिर वो गैस लगाते हैं कि पहले इहदा ऑरा इन्ने फिट सी, हुण इहदे विच इन्नी ग्रोथ हुई है, इस करके ये बच्चा पॉजिटिव है और ये दीक्षा के काबल है। और अपने इंडिया दे विच तां बस एवें जो है प्रोफैशन बना के लोगों ने एक धंधा ही बना लिया, शायद ये बिजनेस ही है। ये रेकी कोई बिजनेस नहीं है, रेकी एक बहुत वड्डी साधना है, बहुत वड्डी तपस्या है। उस तपस्या के राही साधु महात्मा संत लोग जिहड़ा है वो हत्थां दे राही, अखां दियां तरंगां दे राही, अपनी वाइब्रेशन के राही लोगों का भला करते हैं, ठीक है ना। तो ये भला करने का एक जरिया है। लेकिन आजकल मैंने कई थावां ते देखा साढ़े को सीख के भी लोगों ने एक प्रोफैशन बना रखे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोफैशन नहीं है, समझ गए। एक अपने जीवन का खिड़े हुए फुल की खुशबू है जिहड़ी आपां ने पूरी मानवता और दुनिया को देनी है, ठीक है। ओके।